morning. So, continuing from yesterday, uh, actually I got very excited and I tried to remember all the things about the next car. So after 800, where I somehow, उस time I was around 11th or 12th में था मैं. So I tried my best to convince my father कि हाँ we need a new car, चाहे कुछ भी हो जाए, because that the car was getting very old, 12 years हो गया था. It had gone I think more than 90,000 kilometers and it was showing its age. So मैंने बोल दिया कि अब तो बस हो गया, अब हमें नई कार लेनी चाहिए. बड़ा मुश्किल था डैडी को कन्विंस करना बिकॉज 15 ईयर्स का एज होता है कार का. एंड उस टाइम पे तो सबको पता ही है, जितने भी सबके जो डैड्स होते हैं वो दे आर लुकिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी एंड टू मेक फुल यूज ऑफ वट एवर इज देयर ऑल द रिसोर्सेज. सो बड़ा मुश्किल था. एनी वे आई समहाउ मैनेज टू कन्विंस हिम. अब कन्विंस तो कर दिया कि न्यू कार लेना है. और मारुति 800 भी वी वर लाइक जम्पी. वी वर गोइंग टू सेल इट टू वन ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग वाज फाइन. अब ले तो कौन सी कार लें. सो दैट वाज अप टू मी बिकॉज डैडी सेड दैट ओके वट एवर यू डिसाइड यू टेल मी, गिव मी शॉर्ट लिस्टिंग. सो काफ़ी मैंने बहुत रिसर्च किया. उस टाइम तो इतना इंटरनेट होता नहीं था. सो जो भी न्यूज़ पेपर में आ रहा है, कटआउट्स, मैगजीन्स, ओवर ड्राइव की मैगजीन आती थी उस टाइम, ओवर ड्राइव, ऑटो कार, ऑटो एक्स, जो भी जितने मैगजीन्स आई यूज्ड टू रिसर्च कंपैरिजन्स. It was a project for me. Finally, we were able to shortlist it to two cars. And then I used to research comparison. उस टाइम आती थी Daewoo Matiz and the other was Hyundai Santro. So Hyundai Santro was something which I liked and Daewoo Matiz was something which everyone else liked, like including my father. उसका जो bug design था, that was very it was very cute. Everyone liked it. उस टाइम आती थी Daewoo Matiz and the other was Hyundai Santro. Before we were planning for the car, I don't know, something out of the blue happened. We were going to some place and suddenly my dad said ki chalo we'll see cars. So we'll go to the showroom and we'll see. Or guess what, which showroom daddy went? That was the Maruti showroom. So obviously उस time पे Maruti 800 थी पहले, and if you think of upgrading, you will upgrade to a second car in the same company. Or normally होता है ऐसे, we tend to move to the same company for the next car as well. So everything was going as per plan for daddy, not for me. फिर he went, he took us and I was like very, मेरा मूड ऑफ हो गया कि हमने 2 शॉर्टलिस्ट किए, उससे बाहर की कार देख रहे हैं, and that was WagonR. And I used to hate that car at the time because no offense to anyone who owns WagonR, but in my opinion it looked like a complete box. So but it had a lot of space. That was one thing. And the main problem was it was a 4-seater. It was a very narrow car. तो उसमें 4 लोग ही बैठ सकते हैं, पीछे भी 2 लोग बैठ के बस स्पेस खत्म. So anyway, so that happened and almost he was just going to buy it and I was like गई बहस पानी में, like अब तो कोई मुझे सेंट्रो दिला नहीं सकता. डैडी तो he was like कि लेना ही लेना, आज ही लेना है कार. So luckily, I think something went wrong with the loan thing, and it was not. They were not accepting the loan option from his office or something. I don't know. I was too young to understand those things that time. So it got cancelled. So I was the happiest guy, and my father was like, "You were only saying कि कार लेना है, कार लेते रह गए, and you are happy." I am happy because I never want to go with Maruti. And एक थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी हो गया था, कितने प्रॉब्लम्स थे, तो आई एज्यूम कि बाकी कार्स में भी सेम प्रॉब्लम्स होती हैं. सो फाइनली द डे केम व्हेन एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड एंड वी ऑल वेंट टू द Hyundai शोरूम. वी लाइक द कार एंड वी गॉट इट. सो माई फादर, उस टाइम पे ऐसा कुछ शोरूम में कुछ होता नहीं था कि जाके केक काटना है और वो होता है. उस टाइम पे तो बस जो बड़े लोग हैं घर के वो जाते हैं और कार लेके आते हैं घर पे, वो तो ये कार है. So anyway, but I was lucky enough to go on the delivery day to get the car. उसमें बहुत टाइम लगा था, वो लोन का उसका तो पूरा दिन निकल जाता था. तो डिलीवरी डे गए एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज फाइटिंग विद माय फादर फॉर गोइंग फॉर द टॉप मॉडल. सो देयर वर 3 मॉडल्स. एक था LE, फिर LS और DX. सो
DX was the top model. उस टाइम पे एलॉयज तो आते नहीं थे बट फुल व्हील कवर होता था उसमें, एंड पीछे रियर यू नो वाइपर डिफॉगर, एंड यू यूज्ड टू गेट पावर विंडोज दैट टाइम. जो LS मॉडल है उसमें सिर्फ फ्रंट है, बाकी DX पीछे भी रहते हैं. So anyway, I wanted that, but somehow that convinced me, no, we don't have the budget for going. Like वो कुछ 80-90,000 एक्स्ट्रा था. सो शोरूम से निकाले ही. आई वॉज लाइक मैं पीछे पड़ गया कि नहीं, अभी आप लो स्टीरियो लो. उसका स्टीरियो भी नहीं आता उस टाइम. सो द ओनली थिंग दैट वी गॉट वाज फ्रंट पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग एंड AC. दैट वाज अ बूम. सो एनीवे वो सारा व्हील कवर्स इंस्टॉल कर दिए, फिर स्टीरियो इंस्टॉल कर दिया. ये दोनों बस आई थिंक that was the only major thing needed for me. Another issue which happened was it's a very funny incident. तो AC का हमें पता नहीं था पहले. So it was the first time that we were buying a car which had a AC. Now the delivery guy who gave us the car, he said AC 40 के ऊपर यूज़ करना. So 40 के ऊपर मीन्स 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर जा के अगर जा रहे तो उसके ऊपर ही AC यूज़ करना. अब हम रहते थे इन अ वेरी कंजेस्टेड प्लेस. सो 40 के ऊपर गाड़ी जाए ना तो फिर आई वॉज द AC गाय. लाइक आई वॉज द वन हु हैज टू क्लिक द बटन AC ऑन ऑफ. ठीक है. मुझे पता नहीं कि मुझे भी उस टाइम ये लगा कि उसने यही बोला कि 40 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर जाएगा तो ही AC ऑन करना है, वरना गाड़ी पे लोड पड़ेगा. ठीक है. दैट वाज व्हाट आई थॉट. सो एवरी टाइम वी यूज्ड टू गो आउट, वी यूज्ड टू लाइक पूरा स्वेटिंग. मतलब खिड़की बंद है और हम बोले कि AC ऑन होगा. गाड़ी स्पीड करेंगे तो AC ऑन होगा. और 20-30 पे आके वो तो जैसे 40 आई वाज लुकिंग एट द स्पीडोमीटर, जैसे ही 40 होता आई टू स्विच ऑन द AC. जैसे 40 के नीचे आई टू स्विच ऑन द AC. Oh, that was such a big, misunderstanding. Anyway, so luckily we had one of our neighbors who were owning, some car which already had AC. So one day I was just discussing with that auntie देखो क्या AC दिया तो भी क्या फ़ायदा हुआ, 40 के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. एंड शी वाज लाइक क्यों ऐसे क्यों 40 के ऊपर. डिलीवरी गाय ने बोला नहीं यू माइट हैव मिसअंडरस्टूड. बोला नहीं मैंने सुना था. बोला 40 के ऊपर ही ऑन करना. तो मैंने बोला अरे 40 के ऊपर मीन्स जब गाड़ी स्टार्ट जब होती तो उस टाइम ऑन नहीं करना. जब 40 के ऊपर गाड़ी चल गई तो ऑन कर दो और फिर छोड़ दो ऑन. लीव इट ऑन, यू डोंट हैव टू स्विच इट ऑन अगेन. तो ऐसे ओ अच्छा, फिर एकदम बल्ब खनका. एंड देन वाज लाइक हाँ ये सही है. बिकॉज तो ऐसे आई वाज लाइक सीइंग एवरीवन AC ऑन करके घूम रहे हैं, हम ही वो ऑन ऑफ करे यार. इट वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट. And I still feel embarrassed about that, so just wanted to share with you also. So advantages was good. I mean, it was a league apart from what we were having. Maruti 800 was like base एकदम कुछ नहीं, power windows नहीं, power steering नहीं, AC नहीं, suspension नहीं, मतलब गाड़ी एकदम टीन का डब्बा जैसा. And this was like very sophisticated. उसके interiors, पावर स्टीयरिंग, उसको मतलब एक उंगली से लेफ्ट राइट कर सकते हैं. एंड द टायर्स वर रेडियल्स, मतलब आप काफ़ी सस्पेंशन और टायर्स मिला के दे सोक अप लॉट ऑफ अंडुलेशंस इन द रोड. बहुत इट वाज अ अपग्रेड फॉर अस एंड इट वाज वेरी स्मूथ. सो उसका नाम भी उस टाइम मैंने स्मूदी डाल दिया. इट वाज इट यूज्ड टू सोक अप ऑल द बम्प्स सो नाइसली. And that tall boy design was really good. So I'll try to find those pics and try to add it here. And the issues, I really don't recollect any issues. It was like such a reliable car. Only thing is once क्या हुआ कि my dad came from office and it was my responsibility to park the car. So I used to come down and park it. Suddenly I cranked the engine and it didn't crank. So like suddenly what happened, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब चाबी घुमाओ कुछ भी नहीं हो रहा. Suddenly like out of the blue. इससे पहले dad drove the car for like 20-25 kilometers and then you crank it, नहीं start हो रहा. Then we called a mechanic or whoever was nearby and he said sir इसका बैटरी खत्म हो गया. मतलब बैटरी कैसे खत्म हो गया, 2 ही साल हुआ. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो बैटरी में प्रॉब्लम था या क्या था, बट 2 years उसका लाइफ था. एंड इट वॉज करेक्ट. एज सुन एज वी चेंज द बैटरी एवरीथिंग वॉज गुड. So वही द बैटरी वॉज वन थिंग विच सडनली डाइड. दैट आई डिडंट लाइक. आई मीन आई लीव धीरे डाई करता है ना, मतलब फिर 2 क्रैंक में स्टार्ट होता है. क्या देन वी नो कि बैटरी विच प्रॉब्लम, देन वी स्टार्ट, वी गो एंड शो इट टू बैटरी है. बट सडनली डाइड ऑन अस.
Then I think the other thing was we kept it for 8 years. I remember from 2000 to 2008. उसकी बीच में I think 2005 or 2006 में after running I think 50,000 or 60,000 plus kilometers, we had issue with the clutch. So we got the clutch changed. And I think उसमें मेरा भी हाथ था. मैं भी थोड़ा I used to drive a little rash और वो होता है ना बचपना जो स्किड करना है तो क्लच पे चलाते थे आप कार. क्लच थोड़ा छोड़ के एक्सीटर ज़्यादा दोगे तो व्हील स्पिन होती थी. सो दैट उसमें क्लच वो खा जाता है गाड़ी. I think rest everything was good with the car. We were like very happy with the car. So the only reason we were going to change it, I still don't remember the reason why. Only 8 years में why you want to change the car. So I think we got bored with it. I mean that's the only explanation that I can think of, because I also started working by then, and my brother was also working, my father was working, my mother was working. So फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं था. फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं था और गाड़ी 8 ईयर होके ना बड़ी पुरानी सी लग रही थी. सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न वी ट्राई टू चेंज इट मे बी. एनीवे, सो stay tuned. I'll tell you which was the next car, and it is going to be really interesting.